باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان سید فرحان حیدر اور پروگرام حیدر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہر پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے موضوعات اور ایسے ٹاپکس لے کر آئیں جو کہ کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہوں، کچھ ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ایکسپرٹس اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لے کر آئیں ڈسکشن کے لیے کہ جو آپ کو کچھ فروٹفل انفارمیشن دے سکیں۔ تو ایسا ہی ایک موضوع ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے اس وقت کافی زیادہ ضروری ہے اور جو اوور لک ہو رہا ہے، جیسا کہ پروگرام کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ ہے وصیت کی کیا اہمیت ہے اور وصیت کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے روزمرہ کے پلان میں اس طرح سے مگن ہوتا ہے کہ اپنی ہم ایک اچھی انکم ہو، ایک گھر لے لیا اور بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں اور تھوڑی بہت سیونگ ہم نے رکھ لی تاکہ وہ بچوں کے مستقبل کے لیے کام آ جائے۔ اور نارملی ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو ان سب خرچوں کا اور ان سب چیزوں کا جو ذمہ دار ہے، وہ یہ ساری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ پلان تو ہم نے کیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی انہونی ہو جاتی ہے اچانک کہ یہ سارے کے سارے پلان جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ انہونی کیا ہوتی ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو یہ سارے خرچے اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا وہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ تو اب اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوگا؟ یہ جو بھی اس کے اثاثے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اور یا جو اگر اس کے ذمہ کوئی ڈیوز ہیں وہ کون پے کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان سب کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، کیسے مینیج کیا جائے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب سعد صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ سعد بھائی کا میں تعارف کروا دوں کہ سعد بھائی ویسے تو کافی عرصے سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں، جو کہ ویلتھ اینڈ انشورنس ایڈوائزر ہیں، ویلتھ مینجمنٹ انشورنس ایڈوائزر، اور ول کے سلسلے میں بھی ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور اس میں ہمیں آج گائیڈ کریں گے، ہم ایک ڈسکشن کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن میں جائیں، ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر میں یہاں پہ دے دوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لارج کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے انفارمیشن دی جائے، اور اس میں جو بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اپنے لائر یا اپنا جو بھی کنسلٹنٹ ہے اس سے آپ کنسلٹ کریں۔ پروگرام حیدر کے ساتھ فرحان حیدر، حیدر ٹی وی ایز ادارہ، اور سعد صدیقی ایز ایکسپرٹ اوپینین جو وہ دیں گے، ہماری کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہوگی جو بھی آپ قدم اٹھائیں۔ تو وصیت کے حوالے سے اسلامک پرسپیکٹو اس کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ہے یہ قرآن پاک ہے، اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور اس کی آیت ہے 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو سن چکا اس کے بعد اسے کچھ کر دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں۔ بے شک خدا سب جانتا اور سنتا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب وہ اسلامک پرسپیکٹو ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وصیت کر کے جائیں۔ تو اب یہ وصیت، کیونکہ ہم لوگ جہاں جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ سچویشن تھوڑی سی ہے، اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ یہاں ایکسیس ٹو منی تھوڑی سی ایزی ہے۔ بینک آپ کو لون دے دیتے ہیں، آپ بڑا گھر لے لیتے ہیں، بڑی گاڑی لے لیتے ہیں، بچے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جائے
تو پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیسے مینیج ہو. تو اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ ایسا رکھا ہے کہ کویشچن آنسرس اس طریقے سے کہ ایزی آپ سب اس چیز کو سمجھ سکیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ساتھ بھائی ہمیں ان کویشچنس کے آنسرس دیں گے, اور آپ پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں آپ پلیز کال کر سکتے ہیں 7789863204 پر. اگر آؤٹ آف ٹاؤن یا آؤٹ آف ایریا کوڈ ہے تو آپ واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. تو پروگرام اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سعد بھائی, جی سب سر. سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ول یا وصیت ہے کیا؟ میں ضرور شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا ہے اس کی امپورٹنس کا اور جو چیلنجز یہاں پہ ہیں, تو وہ بڑا ضروری پارٹ ہے جو کہ آپ نے خود بتا دیا ہے مجھ کو. لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے لائف میں کہ ہم کو بہت ساری ہم چیزیں ہیں اپنی مصروفیت کی بنا پہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, پرائورٹی لسٹ میں ہمارے نیچے آ جاتی ہیں. لیکن لکیلی ہم کو زندگی اپرچونیٹی دیتی ہے کہ ہم وی کین گو بیک اینڈ فکس دوز تھنگس. کچھ لیکن مسٹیکس, کچھ چیزیں جو کہ ہم نے اگنور کی ہوتی ہیں, وہ لائف آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیتی. اور اگر ان کو ٹائملی ایٹ فرسٹ پوائنٹ پہ فکس نہ کیا جائے تو اس کے کانسیکوینسز کافی سیریس اور ڈیمیجنگ ہوتے ہیں فیملی کے لیے اور پیچھے جو بھی بینیفیشریز ہیں ان کے لیے. رہا سوال آپ کا کہ ول کیا ہوتی ہے. ول بیسکلی اٹس اے لیگل ڈاکومنٹ جو کہ کوئی بھی شخص تیار کرتا ہے ٹو فیسیلیٹ ہز وشز, ہز انٹینشنز ریگارڈنگ ہاؤ ٹو بیسکلی ڈسٹریبیوٹ دا ویلتھ. اور اسپیشلی سچویشن میں جہاں پہ چھوٹے مائنر بچے انوالو ہیں, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ آف گارجین از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور یہ دو پارٹ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں کہ میری اس فیلڈ میں جتنے چیلنجز دیکھتا ہوں, میں نے فیملیز کو بہت زیادہ ڈسٹرب اور بہت زیادہ پین میں دیکھا ہے. ایک تو آپ کا ایموشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ اگر کوئی لو ون از ناٹ اراؤنڈ. دوسرا ڈیزاسٹر اس وقت شروع ہوتا ہے جب تھوڑے سے فائنینشیل چیلنجز سامنے آتے ہیں, اور ان گو کے بعض وقت آپ کے پاس سورسز موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے وداؤٹ پرائر گورنمنٹ اپروول, اور مختلف پروسیس کوڈ انوالو ہوتا ہے, جج انوالو ہوتے ہیں. تو ول کا بیسکلی جی پلیز سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. مطلب ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کسی کی خدا نخواستہ موت واقع ہوتی ہے تو اس کے اکاؤنٹس وغیرہ سارے سیز ہو جاتے ہیں, آپ کی ایکسیس نہیں رہتی ہے اس کے اکاؤنٹس تک بھی. جی ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اسٹیٹس ہے. وہ سارے اکاؤنٹ جو کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہیں اس میں تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے, لیکن جو اکاؤنٹس جوائنٹ نہیں ہیں وہاں پہ ان کو فریز کر دیا جاتا ہے اور پراپر ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, تھرو کورٹ سے اپروول چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ موسٹلی ہماری جو کمیونٹی میں تو یہی ہوتا ہے کہ بلکہ موسٹلی سبھی اپنے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ جوائنٹ اکاؤنٹ والا تو خیر وہ اتنا وہ نہیں ہوتا ہے, کانسیپٹ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کما رہا ہے یا جو بھی صاحب خانہ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو سیپریٹ ہی رکھے اور چھپا کے رکھے کہ اس میں کیا کچھ ہے, وہ بیوی کو پتہ نہ چلے. تو یا اگر بیوی کام کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, تو وہ بھی اپنا الگ رکھتی ہیں. تو میری ویسے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو میں خود اپنے میرے مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ سارے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں, اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی جوائنٹ اکاؤنٹ رکھو. اب پتہ تو ہے ہی کہ کیا کما رہے ہو آپ, تو بیوی سے کیا چھپا کے رکھنا, زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک, یہ بالکل صحیح ایڈوائز ہے. میں خود بگ فین ہوں کہ موسٹلی چیزیں اگر آپ کی جوائنٹ نہیں ہیں, جسٹ ان کیس, تو بیوی کو ہسبینڈ کو وائف کی کم سے کم یہ پتا ہو کہ اگر جسٹ ان کیس انفارمیشن ریٹریو کرنی پڑے تو آپ نے کہاں سے انفارمیشن لینی ہے. اور اس کا بیسٹ سورس یہ ہے کہ آپ اگر چیزوں کو پھر بھی پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ول ضرور ڈرافٹ کریں, اور ول بھی آپ کے لیے میک شیور کریں کہ کبھی بھی جوائنٹ ول کنسیڈر نہ کریں. جوائنٹ ول کو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں, ہمیشہ ول جو ہے وہ سیپریٹ ہونی چاہیے, تاکہ فیوچر کانفلکٹ ہسبینڈ کی الگ ہو, وائف کی الگ ہو, الگ الگ جوائنٹ ول نہ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی وہ پرائیویسی والا میٹر بھی رہے گا, وہ بھی بریچ نہیں ہوگا. ہسبینڈ کی اپنی ول ہے, وائف کی اپنی ول ہے, اور اس میں پھر ول کے کچھ امپورٹنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں, وہ پارٹ ہوتے ہیں, ان کو ضروری ہے کہ وہ ہم آگے بیٹھ کے چل کے بات کریں گے وہ کیا کیا پارٹ ہوتے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے اسپاؤسز کو سم ہاؤ یہ پتا ہو کہ وقت پڑنے پہ, ضرورت پڑنے پہ یہ انفارمیشن کہاں سے ریٹریو کی جا سکتی ہے, اور یا کسی اور تھرڈ پرسن کے پاس اگر رکھائی گئی ہے ول تو وہ کیسے اس کو ایکسس کیا جا سکتا ہے. صحیح.
तो और ये सब एक पॉइंट में और साथ साथ ऐड कर दूं, जहां बात विल की हो रही है, विल के साथ एक और डॉक्यूमेंट है जो कि बड़ा साइड बाय साइड जाता है, और स्टेट प्लानिंग के लिए ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं वो बड़े मैंडेटरी कंसिडर किए जाते हैं। एक तो हो गया विल, जी जो कि आपके विशेस को डायरेक्ट करते हैं कि हाउ यू वांट टू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट योर एसेट्स एंड हाउ हु यू वांट टू बी अपॉइंट एज अ गार्डियन ऑफ योर माइनर चिल्ड्रन, अगर कोई माइनर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह की लिविंग विल है, जिसमें कि आप अथॉरिटी देते हैं अपने पार्टनर को, स्पाउस को, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि द पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस ड्यू टू हेल्थ और मेंटल सिचुएशन और किसी और वजह से, तो आपके बिहाफ पे आपका पार्टनर उसको जो है बेसिकली ऑपरेट कर सकता है। उसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे मैं अकाउंट, आप इन्वेस्टमेंट है कोई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं रजिस्टर्ड अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं आरएसपीएस की बात नहीं कर रहा, ओपन अकाउंट है जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है और जॉइंट ओनर है, और मेरे पास सपोज करें इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो हाफ पोर्शन पे तो आपका एक्सेस है, लेकिन अगर वो जॉइंट नेम में आती है तो हमें सिग्नेचर चाहिए दोनों के। और अगर पावर अटॉर्नी आपके पास है, तो अगर को हस्बैंड या वाइफ फॉर सम हाउ फंक्शनल नहीं है, तो दूसरे के डिसीजन साइन कर सकता है दूसरे के बिहाफ से, अदरवाइज वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल है कि पावर अटॉर्नी साइड बाय साइड जाती है आपके विल के। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाएं, तो सिर्फ विल ही नहीं, साथ ही साथ पावर अटॉर्नी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि विल जरूरी है। अच्छा, पावर अटॉर्नी की भी उस वक्त जरूरत पड़ती है जब इवन इफ यू हैव जॉइंट अकाउंट। अगर जॉइंट अकाउंट, कुछ जॉइंट अकाउंट ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट है जॉइंट, तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर ये दोनों सिग्नेचर रिक्वायर्ड, मिसाल के तौर पे आप पैसे नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है साइन नहीं करेंगे, देन इट्स अ बिग इशू। सही सही, ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद तो उसके बाद ये मतलब इसका बेनिफिट्स विल होने का, एक मिनट, एक कॉल शायद प्रोवाइड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, विल के हवाले से सवाल है, क्या मैं कर सकता हूँ वकील साहब से? जी जी जी, बिस्मिल्लाह जी, पूछिए। तो विल जो है ये मस्ट बी रिटन बाय अ लॉयर, या इसको क्या कहते हैं नोटरी पब्लिक से अटैच कराना चाहिए? अगर हमने खुद विल लिख ली है, टाइप कर ली है, तो क्या मस्ट बी नोटराइज्ड, और क्या कहते हैं, या फिर जरूरी है कि लॉयर लिखे इसको, लॉयर साइन करे? जी बहुत अच्छा सवाल है ये, इसके ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह डिटेल में। आपने सवाल किया तो आप सॉरी अपना नाम बताइएगा। मैं कैलगरी से बात कर रहा हूँ, अस्करी रिजवी। अस्करी भाई जी, बहुत शुक्रिया अस्करी भाई आपके सवाल का। तो मैं अभी इनसे पूछता हूँ साद भाई से, और आपको जवाब मिल जाएगा इसका प्रोग्राम में। प्लीज प्रोग्राम देखते रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो अभी हम उसकी तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर अभी जवाब दे दें, या हम अपने नहीं, मसला नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ा सा, मतलब इस पर ब्रीफली। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। विल का होना जरूरी है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। पहला वेरिएशन ये है, हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप प्रॉपरली लॉयर के पास जाएं और उनसे विल ड्राफ्ट कराएं, दोनों चीजें, विल एंड पावर अटॉर्नी साथ साथ। प्रोफेशनल हैं, एक होलिस्टिकली आपकी सिचुएशन को देखेंगे, प्रोबिंग करेंगे आपसे, करंट सिचुएशन, पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन एज वेल। और विल ड्राफ्ट करने के लिए प्रिसाइज लैंग्वेज चाहिए आपको, और उस लैंग्वेज में अगर थोड़े से कुछ क्लियरिटी नहीं होगी, तो इवेंचुअली आप वो चैलेंजेस क्रिएट करेगा और क्वेश्चंस क्रिएट करेगा। और क्वेश्चंस जो है इज नॉट गुड फॉर, खुदा ना खास्ता आपके बाद फैमिली बेसिकली फेस करेगी वो सारे चैलेंजेस। कोई भी उसको तो चैलेंज एक जो राइट लैंग्वेज है वो लॉयर नोज द राइट लैंग्वेज। तो हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप लॉयर के पास जाएं और उनसे ड्राफ्ट कराएं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप, सॉफ्टवेयर मिलते हैं मार्केट में, आप सॉफ्टवेयर बाय कर लें, उसको, उसमें फील्ड्स होती हैं, प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पंच करें और उसको आप ड्रॉ कर लें अपने तौर पे। लेकिन इंडोर्स खाली पीस ऑफ पेपर और नोट्स जो नहीं है वो काफी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उसको इंडोर्स किया जाए, विटनेस किया जाए, एटलीस्ट 2 लोग उसको कम से कम विटनेस करें, मिनिमम 2 या 3 आइडियली लोग इंडोर्स, तो उसकी वैलिडिटी बनती है, उसके नीचे साइन हो, डेटेड हो। तो ये पार्ट बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन एक और भी है कि आप कहते हैं होलोग्राफिक विल कहलाते हैं, जिसको कि हैंड रिटन विल कहते हैं। होलोग्राफिक विल या हैंड रिटन विल का कॉन्सेप्ट जो है, रिकमेंड मैं कतई नहीं करता उसको, क्योंकि उसमें चैलेंजेस बहुत हैं।
holographic will या handwritten will जनरली हम उसको कंसिडर करते हैं मिसाल के तौर पे जब आप कोई कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट हुआ है एंड द पर्सन हैव नॉट इनफ टाइम टू गो एंड सी द लॉयर एंड सबको, और एक पेपर पे वो सिर्फ अपनी विल ड्रॉ करता है एक क्विक कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसमें ये है चैलेंजेस के पता नहीं ये विल आखिरी विल है, इससे पहले भी नोट लिखे गए हैं, उसके बाद भी नोट लिखे गए, तो ऑप्शन आपके पास तीनों है, लॉयर, दूसरा आप ड्राफ्ट करें सॉफ्टवेयर लेके उसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराने, बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है, करवाने तो अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरे दो लोग उसको इंडोर्स करें, विटनेस करें, लेकिन वो जो विटनेस हो वो लोग कतई ना हो जो कि आपके बेनिफिशियरी विल के बेनिफिशियरी हैं, आपकी स्पाउस, बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर, ये लोग किसी भी सूरत विटनेस नहीं करना चाहिए, कोई भी थर्ड, हाँ, दो लोग जो हैं दूसरे थर्ड पर्सन जो कि एट आर्म लेंथ पे ना हो वो लोग इसको इंडोर्स कर सकते हैं। सही, तो ये तीन तरीके हो सकते हैं जी। तो ये कुछ इस तरह से, ये जैसे हमारे कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक सेंटर्स में उन्होंने कुछ बुकलेट्स रखी होती हैं विल से रिलेटेड, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है? वो सिर्फ एक देखिए मैंने सच्ची बात देखी नहीं है, वो तो मैं उस पे आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ के वो क्या चीज होती है, लेकिन जनरली जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम शेयर करते हैं उसको कहते हैं आप रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर का मतलब ये होता है कि एक विल बुक वर्क बुक होती है या बुकलेट होती है जिसमें कि वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एंट्रीज जो है फाइनेंशियल एंट्रीज उसको राइट डाउन करें, और उसके बाद क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, अकाउंट है तो किस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं। सही। तो ये आपके पास है, इट्स अ गुड इन्वेंटरी बुक, लेकिन उसके आखिर में उन्होंने अगर कोई, क्योंकि देखिए ये बड़ी पर्सनलाइज्ड चीज होती है और वन साइज कैन नॉट बी फिट फॉर एवरीवन, इट्स नीड्स टू बिकम कस्टमाइज्ड। तो आइडियली ये है कि मैं नहीं समझता कोई जेनेरिक फॉर्म उठा लें आप उसको आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज आई सेड कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, खुदा न खास्ता अगर प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड नहीं है, प्रॉपर्ली आपने हर इश्यू को एड्रेस नहीं किया है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस फैमिली के लिए बाद में एक खामखा की फ्रस्ट्रेशन और एक खासी प्रॉब्लम होगी उनके लिए, मुश्किल क्रिएट कर सकती है। सही। चलिए, तो मेरा ख्याल है अस्करी साहब को अपना क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, तो हम अपने फॉर्मेट की तरफ वापस चलते हैं। तो विल तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है और उसकी अहमियत क्या है, अब उसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब विल होने के, अगर आप एक प्रॉपर विल डिजाइन करके एक ड्राफ्ट करके रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर विल नहीं है आपके पास, अगर कोई शख्स विदाउट वसीयत किए अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा उसकी फैमिली के ऊपर? ये दो चीजें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करें। ठीक है जी, आपके एक सवाल के दो पार्ट हैं, मैं पहले जो आपका सेकंड पार्ट था उसको पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई शख्स, इफ द पर्सन डाई विदाउट अ विल, दैट इज कंसीडर्ड इंटरस्टेट, द पर्सन डाइड इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब ये है कि अब आपकी स्टेट को जो बेसिकली हैंडल करेगा, टैकल करेगा, वो उस प्रोविंस की जो भी लॉज हैं वो करेंगे, तो आपकी कोई से, आपकी कोई उस पे मतलब आपकी कोई विशेष जो थी वो कैरी नहीं होगी, बल्कि बेसिकली उसमें वो पार्ट ये होगा कि अब गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड टेक केयर ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविंस, जो भी प्रोविंस का प्रोविंशियल लॉ जो भी होगा उसके मुताबिक। एग्जैक्टली। तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि आप हो सकता है कि अपने तौर पे चाहते हो अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ अंदाज से, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जरा मुख्तलिफ अंदाज से। सही एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास विल नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बेशुमार मिसाल हैं एग्जाम्पल जी जी, कि कुछ पार्टीज जिनको कि आप नहीं चाहते कि एडवांटेज लें या बेनिफिट लें, वो मुमकिन है बेनिफिट ले जाएं, और जिनको आप बेनिफिट देना चाहते हैं उनको एक्चुअल बेनिफिट ना पहुंच सके। हस्बैंड वाइफ की मैं केस आपको रिसेंटली कुछ वर्ष पुराना बता रहा हूँ कि केस चल रहा है उनका डिवोर्स का, सही, ठीक है, अभी सेपरेशन है, डिवोर्स का केस चल रहा है, सही, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द लॉ स्टिल द लेडी इज हिज वाइफ, तो प्रोसीड का मेजर हिस्सा पहला जो है वाइफ को चला जाएगा, वो वाइफ को चला जाएगा, सही, और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो वाइफ में फिर और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही। और ये मेरा ख्याल नहीं है किसी की मतलब इस सिचुएशन में कोई चाहता होगा इस तरह की सिचुएशन इस तरह से हो। तो कोई भी लाइफ के मेजर इवेंट हो, मेजर कोई भी चेंजेस लाइफ में आए, उसको जरूरी है कि टाइमली उसको डॉक्यूमेंटेड करें, सही, ताकि अगेन एज अ सेट के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। दूसरी एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी, सपोज करें माइनर्स चिल्ड्रन
हैं और उन आपकी विल में प्रॉपरली गार्जियनशिप जो है वो एड्रेस नहीं की गई है, सही। तो स्टेट बेसिकली अपॉइंट करेगा फॉस्टर पेरेंट्स। ओह! तो बच्चे भी जो है वो और गवर्नमेंट हाँ, तो ले ये लेगी। ये मैं भी बता रहा हूँ कोई डिसएडवांटेजेस आ रही है ना कि विल ना होने की, गवर्नमेंट सही। बच्चे ले लेती है। हम्म, अब सपोज करें 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि वो 3 बच्चे किसी एक ही फॉस्टर पेरेंट के पास जाएं, वो 3 मुख्तलिफ फॉस्टर पेरेंट के पास जा सकते हैं। सही। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि जिसमें आपकी फैमिली जो है वो उसका शिराजा मुकम्मल शिराजा बिखर जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल। उसको मैनेज करना, फिर चीजें जो है वो वही है कि अगर एक दोबारा चांस मिले तो आदमी शायद विल जो हो फर्स्ट प्रायोरिटी हो, फर्स्ट तो ये काम प्रायोरिटी मैंने पहले करना था, क्या चलना चाहिए था, जो कि मैंने इसको डेफर किया फॉर सम रीजन। सही। तो ये बेसिकली कॉमन यही है कि चीजें आप समराइज अगर मैं करूं तो ये कि आपके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वेल्थ और एसेट आपकी विश आपकी इंटेंशन के हिसाब से नहीं होता। सेकेंडली उस सूरत में जब बच्चे इन्वॉल्व हैं और माइनर बच्चे हैं तो वहां पे डैमेजेस खासे पेनफुल हो सकता है, सीरियस होते हैं। सही। ठीक है। और एडवांटेजेस में इसके अपोजिट है कि आपकी मर्जी से बेसिकली आप अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटर, अपने हिसाब से आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के किसको किस आपके पास अगर एक से ज्यादा एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वेल्थ है, तो उसको किस तरह से अपने किसको कितना पोर्शन देना है। और कोर्ट हमेशा ऑनर करता है, अल्टीमेटली ये कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अगर आपकी विल मौजूद है इन द प्रेजेंस ऑफ योर विल, कोर्ट आपकी विल को ऑनर करेगा और अकॉर्डिंग टू जो भी विशेष हैं उसको वो बेसिकली फुलफिल किया जा सकता है। फुलफिल किया जाएगा। सही। अच्छा, तो उसके बाद आगे हम चलते हैं कि विल जो है, वसीयत जो है, इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं या कि क्या उसमें विल क्या की चलता है? टाइप में जैसे कि बताया कि तीन किस्म की टाइप है बेसिकली। विल होलोग्राफिक हो गई आपकी, वो हो गई, और इसमें जो मोस्ट कॉमन है लेकिन नाम वही है, लॉयर के थ्रू करते हैं, टेस्टामेंट्री जो विल है, जो कि मोस्ट पॉपुलर विल है, जिसमें क्या कि टेस्टिफाई किया जाता है थ्रू लॉयर, तो वो एक कॉमन किस्म की विल है बेसिकली। लेकिन किस्में जो है ब्रेड वो यही है कि आप किस्में से नहीं, मतलब बेसिकली है कि आप विल कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो लॉयर वाली बात मैंने बताई आपको, सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन मौजूद है जिसको कि विटनेस किया जा सके। तीसरा होलोग्राफिक, जिसको कि बेसिकली चांसेस हैं कि उसको चैलेंज किया जा सकता होगा कोर्ट में, तो वो नॉट हाईली रिकमेंडेड। तो वो रिकमेंड मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी बस हाथ से लिख के आप उसको और उस पे साइन कर दें अपने, या उसको अटॉर्नी से ये क्या है नोटरी पब्लिक करवा लें तो वो चल जाएगी। देखिए आप कर सकते हैं, अगेन आपकी जो बाय डेफिनेशन ये है कि आप विल लिखी होनी चाहिए, आपकी डेटेड हो, साइन हो, और अगर उस पे कोई विटनेस नहीं है तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर उसको आपने प्रॉपरली होलिस्टिकली उस विल को आपने डिजाइन किया है और एवरी सिंगल एरिया ऑफ पॉसिबल चैलेंजेस कैन पॉप अप जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अराउंड एंड यू ऑलरेडी एड्रेस ऑल दोस कंसर्न, देन और इंडोर्स की गई है, 2 विटनेसेस ने, 3 लोगों ने विटनेस किया है, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एरिया, मेरा पॉइंट जो है वो सिर्फ ये है कि अगर कुछ एरियाज मिस किए गए तो आपकी विल को नल एंड वॉइड किया जा सकता है और कोर्ट फिर किसी दूसरे को अपॉइंट करेगा इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो आपकी पूरी विल जो लिखी हुई है वो विल जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, इनवैलिड विल कहलाएगी। तो इसको जो विल है इसको कोर्ट में कोई चैलेंज भी कर सकता है? उसके क्या चांसेस होते हैं कि बिल्कुल अगर कोई और रिलेटिव या कोई फ्रेंड उठ के आ जाए और आपकी विल को वो कोर्ट में चैलेंज कर दे कि भाई ये तो मुझे फलां साहब ने मरने से पहले कहा था कि वो वाला जो आपका अपार्टमेंट है वो मैंने तुम्हें देना है, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तो ओरल कम्युनिकेशन जो है इसको तो कोर्ट उस सूरत में क्या होगा? नहीं आपकी विल जो है उसको कोई भी मतलब सर्टेन फी है, विल जो है इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, $30-40 देके आप किसी की विल निकलवा के दे सकते हैं उसमें। अच्छा। तो लेकिन उसमें अगर कोई सिबलिंग्स के दरमियान कोई इस तरह की बात है कि इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कोई थर्ड पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि सिचुएशन। लेकिन हाँ, अगर कहीं कोई केस प्रूफ किया जा सके और सिचुएशन ऐसी हो लेकिन जो डिबेटेबल है और उसके आर्गुमेंट हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं तो हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बड़े रेयर हैं। और इसीलिए कहते हैं बहुत सारी चीजों को हम कहते हैं कि अपनी विल से बाहर ही आप उसको ऑफसेट कर दें। अगर जो चीज विल में जाएगी तो पब्लिक रिकॉर्ड में आ रही है, जो चीज विल में नहीं जा रही है वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। और कौन सी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आती हैं? सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपके रजिस्टर्ड अकाउंट्स में हर वो अकाउंट
जिसमें कि आप बेनिफिशियरी असाइन करते हैं, वो बाईपास कर जाता है आपके बिल को। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा आरएसपी में आपने साइन कर दी अपनी वाइफ के नाम, तो सही। वो आरएसपी जो है वो बिल का हिस्सा नहीं है, वो डायरेक्टली जाएगी अपनी वाइफ ही को जाएगी। या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस पॉलिसी में आपने किसी को असाइन कर दिया, किसी दूसरे तीसरे को, तो वो भी अब स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो डायरेक्टली जिसको असाइन किया अपने बेनिफिशियरी बनाया तो उसके पास डायरेक्टली उसके पास जाएगी। सही। जी तो मतलब जिन जिन चीजों में आपने बेनिफिशियरी ऑलरेडी साइन किया हुआ है, जी हाँ, वो अफेक्ट नहीं होंगी उससे। सही। जी तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो विल है उसको वैलिडेट करना, और व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ विल? वैलिडिटी अगेन फिर वही बात है, वैलिडिटी का मतलब ये है कि उसको आपने इंडोर्समेंट कराई है विटनेस के थ्रू। जो वैलिडिटी है वो आपने उसको आपने ड्राफ्ट की है, अगर वो होलोग्राफिक है तो, सही। और अगर लॉयर के थ्रू है तो लॉयर एक खुद साइन करेगा, एक विटनेस वो खुद हो जाएगा, दूसरे कोई और दूसरा तीसरा आदमी विटनेस हो जाएगा, तो वो बिल वैलिडेट होगी। एक वो बिल सही। जिसको कि आपने लिखी हुई है, उसमें ना साइन किया है, सिर्फ एक नोट लिख दिया है, इफ समथिंग हैपन टू मी ऑल माय वेल्थ विल गो टू माय सन, ये इज नॉट अ वैलिडेट विल। उसको वैलिडेट करने के लिए आपने डिटेल माइनर जो उसकी डिटेल्स है वो सारी आपने बतानी है, और सिर्फ बेटा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है फैमिली ग्रोइंग फैमिली है, उसमें एक उस वक्त एक बेटा है, अब वो 2 हो गए, 3 बेटे हो गए, और बाद में इवेंट हो रहा है आज से 10 20 30 सालों के बाद, तो वो आपने इसको प्रिसाइसली बताना है कि नाम बहुत बेहतर है कि आप विद नेम बताएं, और साथ में ये बता दें कि अगर फ्यूचर चाइल्ड न्यूबॉर्न चाइल्ड would also be part of this estate or something like that. But usually ये part आप कर सकते हैं 3 से 4 साल में। मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी विल को रिविजिट करना चाहिए, उसको थोड़ा सा देखें। और वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपडेट विल को अपडेट भी करना जरूरी है, और कितने? बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है विल को अपडेट करना, और आइडियल रूल ऑफ थंब ये है कि कम से कम हर 3 साल 4 साल में उसको अपने विल को वैलिडेट करें आप। और उसके अलावा कोई भी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आती हैं, फैमिली की लाइफ में आती हैं, जिसमें कि मैरिज ब्रेकडाउन हो सकता है, न्यू बर्थ हो सकती है, मुमकिन है आपका जो एग्जीक्यूटर है उसको चेंज करना है, या बच्चे माइनर बच्चे नहीं रहे, वो बेसिकली अब एडल्ट हो गए हैं, तो इस तरह की जो मेजर चेंजेस आए हैं उसको एड्रेस करना विल में जरूरी है। तो 3 से 4 साल एक रीजनेबल टाइम है जिसमें कि आपकी विल को आपको चाहिए कि उसको रिविजिट करें, लॉयर के साथ बैठें। अगर मेजर चेंजेस आई हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि अपनी पिछली विल को आप कैंसिल करें और नई विल डिजाइन करें। और अगर जस्ट अ माइनर थिंग है, किसी नाम ऐड करना है कि घर में कोई सपोज करें कोई विलादत हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई है, कोई उसका नाम ऐड करना है, तो उसमें आप अमेंडमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस अमेंडमेंट को भी जरूरी है कि साथ में इंडोर्स किया जाए, विटनेस किया जाए 2 लोगों के साथ, डेट और टाइम के साथ, और उसको के साथ अपने विल एग्जिस्टिंग विल के साथ अटैच करें, उसको रखें उसके साथ। सही। तो ये जो आपने बताया कि बेस्ट जो तरीका है वो तो लॉयर से करवाया जाए, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है अगर एक प्रॉपर लॉयर? $100 है, क्योंकि मैंने समझता कि लोग जो अवॉइड करते हैं इस चीज को, या जो एक रुकते हैं कि अच्छा यार एक्स्ट्रा खर्चा है, ये क्या कर लेंगे, देखा जाएगा, तो उसमें एक कॉस्ट का थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे दें तो। कॉस्ट बेसिकली वेरी करती है, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव फ्रैंकली स्पीकिंग, few $100 है, few thousands नहीं है, few $100 है। मुमकिन है, डिपेंड करता है कि आप किस लॉयर से करवा रहे हैं, $300 से लेके $700 तक का रेंज देख लें आप उसमें। सही। तो और ये दोनों के बता रहा हूँ आपको, विल एंड पावर अटॉर्नी, और 2 विल्स हैं और 2 इसमें पावर अटॉर्नी है, तो ये सेट है पूरा। ठीक है, सिर्फ विल नहीं है, एक विल नहीं है। और अगेन याद मतलब मैं फिर सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहूंगा कि कंबाइंड विल कभी भी कंसीडर ना करें, सेपरेट विल होने चाहिए, हस्बैंड की अपनी, वाइफ की अपनी विल होनी चाहिए। और ये जो खर्चा है, मतलब लेट्स से अगर हम एवरेज आउट इसको कर लें, $500 लगा लें चलें, तो ये आपको एक बहुत बड़ी हैसल से बचा सकता है। बहुत बड़ी। प्रोसेस इज सो एक्सपेंसिव, सो टाइम कंज्यूमिंग। सही। पर आवर जो लॉयर्स चार्ज करते हैं वो फिगर्स आप सुना होगा आपने, या मुमकिन है बताने के से तो कहता हूँ किसी का वास्ता पड़े, क्योंकि थाउजेंड्स में जाती है, पर आवर चार्ज करती हैं, थाउजेंड्स में कॉस्ट जाती है लॉयर के साथ जब डील कर रहे हैं आप, तो वो बड़ा लेंथी, बड़ा एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये $100
स्टिच ऑफ टाइम सेव 9 कहते हैं कि जनाब वक्त का एक टाका जो है आने वाले 9 टाकों को, तो बेहतर ये है कि राइट टाइम पे फैसला किया जाए। ये वो पैसे हैं जिसको कि सेंसिबल एक डिसीजन है, इनको मतलब पैसे खर्च करना है यहाँ पे, और फैमिली के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है इससे। जी, एक और कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं। जी प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरहान भाई, मैं अनीस बात कर रहा हूँ। मुझे एक सवाल ये करना है जी अनीस भाई। साथ सिद्दीक के हिसाब से जी जी कि और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और बहुत ही अहम है, खासतौर से जो वेस्ट में रहते हैं या हम जैसे कनाडा की बात कर रहे हैं तो जी बिल्कुल ये बिल के हवाले से। तो मेरा सवाल ये है कि सिद्दीक साहब से अगर पहले तो सलाम, सॉरी मैं भूल गया। वालेकुम सलाम। साथ सिद्दीक साहब से सवाल है कि क्या बिल बनाने के लिए किसी लॉयर की जरूरत है या हम खुद भी बना सकते हैं? जैसे बहुत सारे टेम्पलेट मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों के नेट पे भी मौजूद हैं, तो टेम्पलेट अगर हम कोई बना के बना लेते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? वो भी एक्सेप्टेबल है इन द केस ऑफ जब ये बिल जो है वो देखी जाएगी अगर इंतकाल हो जाए खुदा न खास्ता किसी का, तो उस सूरत में ये सवाल करना। जी, मैं इस सवाल का मेरे ख्याल पहले जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर इसको समराइज कर देता हूँ कि कोई लाजमी नहीं है कि आप लॉयर से बिल बनाएं, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि जो आप टेम्पलेट यूज करना, हर सिचुएशन डिफरेंट है, इसको आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि वो स्किल सेट आपके पास है और आप उन सारी करंट और पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन को विजुअलाइज करके उसको आप क्लियरली आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपने ड्राफ्ट में, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो उसके बाद आपने उसको ड्राफ्ट करने के बाद, लेकिन जो इसमें एक मेजर कंपोनेंट है जो कि एक पीस ऑफ पेपर को विल बनाता है, वो उसकी इंडोर्समेंट है। वो जरूरी है कि आप विटनेस लोगों को मेक श्योर करेंगे मिनिमम 2, नहीं तो आइडियली 3 वो लोग शामिल हों जो कि आपकी उस विल का हिस्सा नहीं है। सही, तो बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए, एग्जीक्यूटर नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि वो थर्ड पर्सन हो जिनके सामने आपने साइन किया है, डेट डाली है, टाइम लिखा है, तो वो पार्ट बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे जब आपने उसको इन 3 लोगों के या 2 लोगों के साइन उस पे करवा लिए, तो इज दैट इनफ या उसको फिर नोटराइज करवाना भी जरूरी है? नहीं, नोटराइज कराना कोई लाजमी नहीं है। नोटराइज कराना लाजमी नहीं है? कोई लाजमी नहीं है उसको। ठीक है। तो बस से ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ, नोटराइज एक ऑथेंटिक पर्सन है, आपके सामने कर रहे हैं, वो सील लगा देता है कि हाँ जी ये शख्स मेरे सामने जो आके बैठे हैं। क्योंकि उसमें एक जो पॉइंट हो सकता है वो ये कोर्ट मुमकिन है करे कि द टाइम द पर्सन वाज साइनिंग वाज ही मेंटली कैपेबल एंड हेल्दी टू साइन। नोटराइज एक मतलब एक बेसिकली एक एंटिटी है जिसको कंसीडर करते हैं कि वो सामने आपके सामने देख के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने साइन करते हैं, सील लगाते हैं, तो मोर ऑथेंटिक हो जाती है। कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मोर ऑथेंटिक हो जाती है, लेस चैलेंजेबल होती है, हैंड रिटन चैलेंजेबल हो सकती है। सही। तो मेरा ख्याल में ये इस वक्त यही सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि खुद ही बना लिया जाए या जो टेम्पलेट मिल रहे हैं उन्हीं को यूज कर लिया जाए। सॉफ्टवेयर ट्राई करके देख लें, सॉफ्टवेयर में खाली $60-70 का या सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उस सॉफ्टवेयर को आप ट्राई करके देख सकते हैं और समझते हैं कि अगर आप ये सारे एरियाज जो हैं, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, 3-4 इम्पोर्टेंट पार्ट है विल के, उसको मेक श्योर करें वो मिस ना हो। अगर वो मिस है वो पार्ट, तो आपकी विल वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। पहली बात, आपके सारे एसेट्स की लिस्ट बहुत जरूरी है, ठीक, उसमें कोई एसेट मिस ना हो। दूसरी बात, आपकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी एसेट किसके पास जाएगा, उसमें कोई डेफिशिएंसी, कोई गैप ना हो। सही, ठीक है। उसके बाद अगर कोई उसमें माइनर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं तो उसमें गार्डियनशिप आपकी जरूर होनी चाहिए। सॉरी जी। तो उसमें गार्डियनशिप आपकी क्लियरली हो कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती है और हस्बैंड वाइफ के साथ डेथ होती है, तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द माइनर किड्स। और साथ में माइनर किड के बाद अगर सपोज करें, अज्यूम कर रहे हैं कि ये बात हम ऐसे स्लाइटली मैं टच कर रहा हूँ कि एक शख्स ने $1 मिलियन की पॉलिसी ली हुई है, $25-50, $100 की, वट एवर अमाउंट है, और उसमें अपने माइनर तो बता दिया कि ठीक है माइनर है। अब वो माइनर बच्चा जहाँ एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंचा 18 साल की उम्र में, कि आप चाहेंगे कि $500 million उसके हाथ में आ जाए? इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो आपने इसको फर्दर डिस्क्राइब करना है, कोई और उस पे गार्डियन या दूसरा जो भी पॉइंट करना है कि एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक फर्दर, उसके बाद हाँ ये पर्सन इंटाइटल होगा मंथली इनकम के लिए। उसके बाद जब एज ऑफ 27-28 पहुंचे तो आपने इसको प्रोसीड, जो भी रिमेनिंग प्रोसीड हो उसको आपने तब देनी है। तो ये सारी वो चीजें हैं
जो माइनर डिटेल्स हैं जिनको कि एक हेल्प मेक सेंस। सही। मुमकिन है एज ए लेमैन आपको प्रोफेशनल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप इतनी दूर तक शायद चीज को विजुलाइज ना कर सके, शायद प्रॉपर्ली इसको एड्रेस ना कर सके, तो एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको हेल्प कर देगी। और जेनेरिक सॉफ्टवेयर अच्छी बात मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो बात यही है कि जो भी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का वो प्रॉपर लैंग्वेज भी वो यूज कर सकता है और वो प्रॉपर चीज ड्राफ्ट भी कर सकता है। लैंग्वेज मेक्स अ बिग डिफरेंस। सही। और उसमें कोई गैप्स, कोई डेफिशिएंसी कैन क्रिएट टू मच प्रॉब्लम फॉर द बेनिफिशियरीज। सही। और क्योंकि इस सारा अमल करने का जो भी एक कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो पीछे रह गए हैं लोग, जो फैमिली रह गई आपकी, उनके लिए आसानी क्रिएट हो, ना कि वो मजीद मुश्किल में जाए। जी हाँ। तो अगर हम चंद $100 बचाने के लिए हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि वो जो पीछे वाले हैं वो फिर से फर्दर मजीद मुश्किल में आ जाएं, तो इसलिए बेहतर है कि बजाय हम हाथ से लिखने के या सॉफ्टवेयर $60-70 का यूज करने के, हम एक प्रॉपर लॉयर के पास ही चले जाएं और एक प्रॉपर जो तरीका है उस तरीके से हम एक प्रॉपर विल जो है वो ड्राफ्ट करवा लें। तो इसमें फिर ये आ जाता है कि उस विल की एक्सेस जो है वो किसके पास होनी चाहिए? ये करें कि विल लिखवा के उसको लॉक एंड की में रख के तो भूल जाएं, या कि किसी को बताएं भी कि भाई मैंने ये विल ड्राफ्ट करवाई है और ये एक कॉमन कंप्लेन है और बड़ा खतरनाक जो हम स्टेप करते हैं या लोग करते हैं वो करते हैं। विल को ड्राफ्ट करने के बाद उनके लिए सबसे आइडियल प्लेस जो होती है वो होती है लॉकर। बिल्कुल। एक तो लॉकर पे आपने विल रख दी है, और अगर सपोज करें ज्वाइंट लॉकर भी नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं है, तो अब सवाल ये है कि उस विल तक एक्सेस कौन करेगा, कैसे करेगा? आपको फिर कोर्ट जाना है, और कोर्ट जाके फिर आपको परमिशन लेनी है, जज से परमिशन लेनी है, प्रॉपर जो रेगुलर अथॉरिटीज हैं उनको इन्वॉल्व करना है, which can even just for accessing a will can take few weeks, few months. सही। उसके बाद आप सिर्फ विल एक्सेस कर रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये होती है कि विल आप बेसिकली अपने घर में रखें। घर में एक आपको $100-150 की लॉकर मिल जाता है जो कि वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ। उसमें आप उसको वहां पे सेव करें, और साथ ही साथ उसकी कॉपीज जो हैं, अगर आप सपोज कर रहे हैं लॉयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप या एग्जीक्यूटर इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, तो उसकी 3 कॉपीज बनाएं। एक कॉपी तो अपने पास वहां पे रखें, एक आपके एग्जीक्यूटर के पास होनी चाहिए, क्योंकि विल इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट एग्जीक्यूटर, कि हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट योर विशेस। तो वो जो शख्स है, आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली मेंबर हो, उसके पास या तो उसकी कॉपी हो, या कम से कम उसको आप अपने लॉकर का पासवर्ड या कोड जो है बता दें कि कहाँ पे ये लोकेटेड है जगह, और साथ में पासवर्ड उसको बता दें ताकि वो उसको जब कभी भी टाइम आता है उसको एक्सेस कर सके। और 3 कॉपीज मैं रिकमेंड करता हूँ, एक आपकी लॉकर में होनी चाहिए, एक आपके एग्जीक्यूटर के पास हो, और तीसरी आपके लॉयर के पास हो। मतलब दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। ये जो आप एग्जीक्यूटर का जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सा होता है? एग्जीक्यूटर बेसिकली वो होता है जिसको कि आप अपॉइंट करते हैं कि मेरे बाद कौन मेरे फाइनेंशियल्स जो अफेयर्स थे जो कि पेंडिंग थे, अनएड्रेस थे, उनको किस तरह से लिक्विडेट करना है, और लिक्विडेट करने के बाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि कोई एक शख्स काम करेगा, पूरी फैमिली नहीं आ सकती। फैमिली में मुमकिन है स्पाउस को आप एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, मुमकिन है बड़े बेटे को बना सकते हैं, मुमकिन है अपने फ्रेंड को बना सकते हैं आप किसी को। तो वो सारी उस कोर्स के बाद उस एग्जीक्यूटर की अथॉरिटीज क्या है, आपने उसको अथॉरिटीज असाइन करनी होती है कि किस हद तक आपने अथॉरिटीज दी है उसको। फिर उसके बाद सारी वेल्थ, सारे आपके जो पेंडिंग ऑब्लिगेशंस उसको पे ऑफ करना उसकी जिम्मेदारी है, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना उसकी जिम्मेदारी है, और जहां से मुख्तलिफ कलेक्शंस हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रोसीड्स हैं, वो जो प्रोसीड्स हैं उन सबको एड्रेस करना, उससे क्वाइट अ बिट वर्क लिस्ट है इसकी होती है, ठीक है। और बाज़ वक़्त अपने एग्जीक्यूटर को आप किसी किस्म का कंपनसेशन ऑफर करते हैं कि जी ठीक है, ये करने के बाद मेरी वेल्थ का 2%, 3% या उसका 5,000 या 10,000, मतलब क्योंकि इसमें आप कोई चंद घंटों की जॉब नहीं है, ये जॉब डिपेंड करता है कि आपका स्टेट का साइज क्या है। इट कुड बी फॉर फ्यू मंथ्स और सम टाइम अ ईयर, लेंथी हो सकती है ये। अच्छा। तो उसकी बेसिकली जॉब जी। तो अगर नहीं है तो उस सूरत में, मतलब अगर विल नहीं है तो आपने कोई एग्जीक्यूटर नहीं है, तो फिर तो सब कुछ कोर्ट के पास चला गया, और फिर कोर्ट एग्जीक्यूटर अपॉइंट करे, यस, और फिर वो अपना उस हिसाब से उनके चार्जेस तो अपने जो उनके चार्जेस होंगे वो तो फिर आपका तो सब कुछ जो बचा वो तो फिर गवर्नमेंट ले जाएगी। फिर मेरे ख्याल में पोर्शन, एक खासा पोर्शन जो है वो खासा पोर्शन परसेंटेज डिपेंड करता है। ये एक
क्वेश्चन आया है जी, जरा सुन लेते हैं। जी सॉरी फरम में एक और सवाल है कि क्या जो बेनिफिशियरी है अगर वो कैनेडियन नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उसका नाम भी वैलिड होगा कैनेडियन लॉ के हिसाब से विल के अंदर? ये Beneficiary, एक अगर वो कनाडा में अब अगर यहाँ लोकल नहीं है, नहीं रह रहे यहाँ पे, आइडियली वैसे आपका बेनिफिशियरी लोकली हो तो बेहतर है, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो चैलेंज हो सकता है हमारे मुल्कों से वो ये कि अगर सपोज करें उनके पास वीजा ही नहीं है, ये गवर्नमेंट उनको वीजा ही नहीं दे रही है, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है ये कुछ सिचुएशन में। लेकिन प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है कि बेहतर है कि जिस प्रोविंस में आप मौजूद हैं वहाँ की प्रोविंशियल लॉ देख लें वो क्या कहते हैं, और ये चीजें वेरी कर सकती हैं प्रोविंस टू प्रोविंस। लेकिन आइडियली रिकमेंडेड ये है कि लोकली आपका बेनिफिशियरी हो। हाँ, अगर उनके पास ऑलरेडी सपोज करें मल्टीपल वीजा लगे हुए हैं और इन एंड आउट कनाडा में कोई इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इतना बड़ा इशू है कोई। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हाउ अबाउट द गवर्नमेंट, उनके पास वीजा नहीं है या गवर्नमेंट को वीजा नहीं दे रही है, तो टाइमली उनके पास यहाँ पहुंचना और उस फंड को एक्सेस करना प्रेजेंसी लोकली यहाँ पे होना उनका जरूरी है। दिस इज व्हाट माय क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगेन चेक करना ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो लेट्स से जी अब डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी बिल बनानी है जी। अब मैंने जाना है लॉयर के पास, ठीक है, तो वो कौन से क्या क्वेश्चंस, क्या मैं क्या होमवर्क क्या करूं, मैं क्या क्वेश्चंस लेके जाऊं लॉयर के पास के वो मुझे किस तरीके से गाइड करे, वो क्या क्वेश्चंस होने चाहिए जो मैं लिख के। क्वेश्चंस आपने बेसिकली लॉयर से नहीं करनी, क्वेश्चंस आपने सबसे पहले जाने से पहले अपनी लिस्ट खुद रेडी करनी है कि मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव विद दिस विल। उसमें आपने सबसे पहले अपना आइडियली बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन निकालनी शुरू करनी है कि उसमें देखनी है आपने आपके एसेट्स क्या हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। सही, ठीक है। उस सारे एसेट्स की इन्वेंटरी बनानी है आपने। उसके बाद फिर आपने सेकंड जो पार्ट करना है वो ये है कि अब अगर ये सिचुएशन होती है खुदा खास्ता इफ नॉट अराउंड और इन सारे एसेट्स को मैंने डिस्पोज ऑफ करना है या कुछ को करना है कुछ को नहीं करना है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। सही, ठीक है। फिर अगेन एग्जीक्यूटर मैंने किसको अपॉइंट करना है, मेरा फ्रेंड होगा, मेरी वाइफ होगी, मेरे पीछे मेरे कौन, और अगर खुदा ना खास्ता मैं और मेरी वाइफ को साथ में कुछ होता है तो अपने बैकअप के तौर पे कॉन्टिजेंट एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरीज उनको भी कंसीडर करना है। तो अपनी फर्स्ट लेयरिंग सेकंड लेयरिंग में आपने देखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको मैं कैसे एड्रेस कर सकता हूँ। और अगेन सबसे पहले आपकी इन्वेंटरी जरूरी है, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन जरूरी है कि किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। थर्ड आपके बाद फिर अगेन अगर बच्चे हैं तो उस बच्चों की सूरत में मैंने जो है इसको गार्डियन अपॉइंट करना है, उनके नाम आपके जहन में होना चाहिए। तीसरा अगर खुदा न खास्ता अगर कोई फिजिकली और मेंटली चैलेंज वन ऑफ द फैमिली मेंबर है और उसके लिए आपने कोई ट्रस्ट स्ट्रक्चर करना है, कोई बच्चा है मिसाल के तौर पे, कोई डिसेबिलिटी है, चैलेंजेस है और वो बच्चा आने वाले इवन एज ऑफ मेजोरिटी पहुंचने के बावजूद भी अपनी लाइफ में वो कैपेबल नहीं होगा अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो आपने फिर उसके लिए कोई एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, लाइफ टाइम ट्रस्ट क्रिएट करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अपने पास लॉयर के पास जाने से पहले आप अपने आप से खुद आपने अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है और अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं और उसका टेंटेटिव एक आंसर एक चीज आपके पास हो जो कि आप जाके आप लॉयर को बता सकते हैं। उसके बाद लॉयर आपकी जो भी सिचुएशन होगी उसको सुनने के बाद एक पिक्चर ड्रॉ करेगा, उसके बाद फिर वो मजीद फर्दर प्रोबिंग करेगा, फर्दर चीजें ला सकता है कि अगर सिचुएशन हुई, अगर इफ ये हुआ तो क्या होगा, इफ सिचुएशन चेंज होती है तो क्या होगा, लाइफ में कोई नया इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आता है तो क्या होगा, फ्यूचर में अगर कोई मजीद सेकंड वाइफ से सपोज करें कोई औलादे होती हैं तो उनका क्या पोर्शन होगा। तो ये सारी जो टेक्निकल इश्यूज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बैठ के वो बात करेगा और उसके बाद आप उसको ड्रॉ करते हैं विद ऑल द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हाउ योर फाइनेंशियल अफेयर्स और थिंग्स कैन बी बेसिकली कंपोज और प्रॉपर्ली एक रोड मैप क्रिएट किया जा सके जिनके बेसिस में। तो मतलब वही बात होगी ना कि वो प्रोफेशनली ये सारे ऑप्शंस देख के उसके ऊपर आपको एडवाइस देगा, रादर देन कि आप एक जेनेरिक टेम्पलेट उठाएं और उसी को आप चला दें कि भाई दिस इज माय विल। तो वन साइज नेवर फिट फॉर एनीवन, फॉर एवरीवन। हाँ, तो फॉर एवरीवन, तो वो जेनेरिक फॉर्मेट जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं, आइडियली नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग वेरीज पर्सन टू पर्सन, उसकी लाइफ है। जैसे एक मिसाल शायद आपने पहले दी कि अगर आपकी डिवोर्स चल रही है और आपने अपनी या डिवोर्स हो चुकी
और आपने अपनी विल अपडेट नहीं सेपरेशन चल की। रही है आपकी, सेपरेशन चल रही है, डिवोर्स हो गई तो फिर तो चैप्टर क्लोज हो गया, तो नहीं, सेपरेशन चल आपने रही है, डिवोर्स की तरफ चल पड़ना है। अपडेट नहीं की ना, विल अपडेट जी नहीं हाँ, की, तो उसके अंदर तो वही उसी स्पाउस का या उसी वाइफ का नाम है, तो जो नहीं प्रोसीड्स होंगी, मतलब अगर अगर देखें डिवोर्स हो गई और आपने अपनी विल अपडेट नहीं की, अब डिवोर्स हो गई, अब तो वाइफ नहीं है आपकी, लेकिन तो आपने इसको आप विल अपडेट नहीं की ना, विल विल में तो तो अपडेट करना है आपने, दो पार्ट है हाँ, उसके। ड्यूरिंग सेपरेशन प्रोसेस जो है वो आपकी टेक्निकली आपकी वाइफ है, ठीक है, जब डिवोर्स हो गई तो अब वो वाइफ नहीं है आपकी, लेकिन अब वो विल डिवोर्स हो चुकी आपने है। हाँ, अपडेट विल नहीं को की करना थी, जरूरी है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, तो विल में लेकिन तो वो विल में आपकी वाइफ वही है जिसको आप डिवोर्स दे चुके हैं, तो प्रोसीड्स तो उसी को मिल जाएंगी ना। हाँ, लेकिन उसको अगर बच्चे बड़े हैं तो दिखा सकते हैं ये डिवोर्स हो चुकी है ये, अच्छा, ठीक है, वो पेपर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि डिवोर्स हो चुकी है, ये सही, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ड्यूरिंग ओके, द वो फेज जिसमें कि सेपरेशन चल रही है, हम्म, साल भर का सिलसिला है सेपरेशन का, उसमें अगर बीच में कुछ है हो जाता है तो टेक्निकली वो आपकी वाइफ ही है, उसको आप मतलब उसको कोर्ट डिनाई किसी करें, भी सूरत में इग्नोर नहीं करेगा, तो अच्छा, पहला मेजर पोर्शन उन्हीं के पास जाएगा। सही, जी सही, हाँ, अच्छा, तो ये तो हो गया सिलसिला सारा के विल का। अब इसमें जो आपके जैसे डेट्स आपने हैं, जैसे लोन लिया हुआ है या वो इस किस्म की चीजें, जी तो उसको भी इसी में ड्राफ्ट करना होता है कि ऑफ उसको कोर्स, किस तरह से पे ऑफ करेंगे। आपकी और पूरी बैलेंस शीट, आपकी ऑब्लिगेशन साइड और आपकी एसेट साइड्स, उन सही, सारी चीजों को आपने डॉक्यूमेंटेड करना है कि ये मैं व्हाट आई ओ एंड व्हाट आई ओन, सही, और उसके बाद लेस तो आपको तो जो तो सबसे पहला जो लेट्स से डेट पेमेंट होती है, तो वो कौन है जो आपके दरवाजा नॉक करेगा कि भाई मेरे पैसे कौन देगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो तो आपकी मॉर्गेज का है, सही, कि जो सर पे बैठी है आपके छोटे वीजा कार्ड मास्टर कार्ड, ठीक है वो जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, खुदा न खास्ता प्रॉपर्टी हो, आप जहाँ पे प्रॉपर्टी है आपकी और जो यहाँ से मॉर्गेज ली हुई है, वो एक सर पे आपकी छत है, बहुत बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है वो, सही, और वो उस पर नोटिस आने शुरू हो जाए तो एक खासा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वो फोरक्लोजर पे डाल देंगे, सही, और फोरक्लोजर के बाद वो जो ड्रीम आपने देखा है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, तो वो छत छिनने के चांसेस हैं। तो सही, जरूरी है उसको सिक्योर करने के लिए कि आपके पास पहले से कुछ प्रायर मॉर्गेज इंश्योरेंस टाइप की चीज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उस सूरत में ये है कि आप बेसिकली आपका सोर्सेज हों, या फिर आपको अपनी जो स्टैंड ऑफ लिविंग है उस पर बड़ा सीरियस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपकी फैमिली को आपके पीछे। सही। तो इसको सिक्योर करने के लिए क्या ऑप्शंस हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्या आप एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए ले लें, उसके बाद जी जरूर। जी ये एक और सवाल है कि जिस तरीके से यानी अभी सजेल साहब ने कहा कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए जो एक लंबा प्रोसेस होता है विल की, तो अब जो डिटेल है, चाहे मैं यानी खुद बनाए कोई विल अपनी या किसी लॉयर के थ्रू भी, उसमें डिटेल कंटेंट की जो डिटेल है वो कहाँ तक जाएगी। जैसे एग्जांपल दूं कि मेरी कहीं पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और अगर मैं मर गया तो उसमें पॉलिसी नंबर भी होना चाहिए, या सिर्फ ये लिख दिया जाए और वो सारी पॉलिसी को कवर कर लेगा। एक पॉलिसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहां जॉब कर रहा हूँ उसके साथ है, एक मैंने अपने लेवल पे इंश्योरेंस ली है, तो क्या इंश्योरेंस नंबर बैंक के साथ इंश्योरेंस, अगर मेरी वहां बैंक में जॉब है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है या इंश्योरेंस कंपनी में जॉब है, तो अब ये तीनों सिचुएशन में 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज है मेरी, तो तीनों को लिखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी नंबर है, या सिर्फ लिख दो कि भाई मेरी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सब जो है वो बेनिफिशियरी ये होगा, इस तरह इतना ही काफी हो जाएगा। क्योंकि कंटेंट पे तो आपको वो बता सकता है कि आपके सारे असेट्स इन्होंने मेंशन कहा कि वो कर दिया करें, लेकिन ये वादे कर दें कि डिटेल किस हद तक मेंशन करनी है विल में। जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिटेल के सर हवाले आपको से लाजमी पॉलिसी नंबर मेंशन करें, बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर फैमिली को पता ही नहीं है कि आपके पास पॉलिसी क्या है, उसकी कवरेज क्या है, किस टाइप की पॉलिसी है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं कि आपकी विल के अंदर बड़ा क्लियर लिखी हो कि जी मेरे पास टर्म 20 पॉलिसी नंबर दिस इंश्योरर मैन्युअल लाइफ सन लाइफ जो भी कंपनी है, तो कंपनी पॉलिसी नंबर कब ली है और किस किस्म की पॉलिसी है, और टाइप भी लिखना जरूरी है। तो मिसाल के तौर पे आपने कोई पॉलिसी ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 10 साल की पॉलिसी ली, टर्म पॉलिसी, और आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग ये चीजें प्रॉपर लिखी नहीं है, भूल गए, 12वें 14वें साल में जाके खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है और आपने लिखा हुआ है सारी पॉलिसीज, अब वो पॉलिसीज की ना तो उसमें डेट है ना डिटेल है, पता ही नहीं, पता चला कि वो 10 साल की पॉलिसी ली थी, वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गई। तो पॉलिसी की जरूरी है कि आपने किस साल में पॉलिसी बाय की थी, पॉलिसी किस कंपनी के थ्रू है, पॉलिसी नंबर और द टाइप ऑफ पॉलिसी।
अगर परमानेंट है तो होल लाइफ है तो या आपके पास टर्म जिस किस्म की है, तो ये सारी जो माइनर डिटेल्स हैं बहुत ज़रूरी है और हाईली रिकमेंडेड कि आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए। सिर्फ पॉलिसी का लिख देना कि सारी पॉलिसीज काफ़ी नहीं है। यस, जॉब आपकी मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉयर के साथ थी, अब उसके साथ एम्प्लॉयर बाद में आपने चेंज कर लिया, जब पॉलिसी बनवाई थी आपने लिख दिया मेरी पॉलिसी एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन अब जो नया एम्प्लॉयर है उसके साथ या आखिरी एम्प्लॉयर जो था उसके साथ आपकी पॉलिसी कोई नहीं थी, तो हम करके कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो इस किस्म के जो भी इवेंट हो, उन सारे इवेंट को जिनकी मैं बात कर रहा था, जिस तरह के मेजर इवेंट हो लाइफ में, तो ये सारे इवेंट जरूरी है इनके लिए कि आप अपनी पॉलिसी को अपडेट करें इमीडिएटली। सही, मतलब एक एक चीज जो है वो हर चीज डिटेल में जितना ज्यादा डिटेल में होगा उतना ज्यादा आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। सही, तो ये एग्जीक्यूटर जो है ये बेसिकली आपकी स्पाउस भी ही हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। स्पाउस तो आपकी बेनिफिशियरी होगी ना, तो बेनिफिशियरी ही एग्जीक्यूटर भी हो सकती है। अच्छा, स्पाउस आपकी बेनिफिशियरी भी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप 2 एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं कंबाइन। एक लॉयर हो गया और एक वाइफ हो गई, या वाइफ हो गई और दूसरा, मतलब तो आप कंबाइन एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं और उनको सेपरेट पावर्स जो है बेसिकली दे सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और दूसरे की कैपेबिलिटी क्या है। सही, तो नाजरीन आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आज का प्रोग्राम जो है ये विल या वसीयत के हवाले से काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है साद सिद्दीकी भाई के साथ, और आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फ़ोन नंबर 778-986-3204 के साथ। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस डिस्कशन के हवाले से। प्लीज़ कॉल करें और ज्वाइन करें, अपना कोई भी सवाल अगर आपका है तो पूछिए। तो साद भाई हम बात कर रहे थे कि इसको कवरेज के हवाले से कि अगर लेट्स से अब आपके पास जैसे यहाँ पे हम लोग जहाँ जैसे रह रहे हैं कनाडा में हैं या बाहर के ममालिक में, यहाँ पे बैंक्स जो है वो काफ़ी हमें फंडिंग मिल जाती है, अच्छी जॉब है, अगर आपके पास अच्छा आपका क्रेडिट हिस्ट्री है तो आप बैंक से अच्छा खासा लोन लेके एक बड़ा घर ले लिया, गाड़ी अक्सर जो है वो लीज पे ले लिया, फाइनेंस करवा ली, तो हमारे खर्चे जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अब जैसे आपने बताया कि हम लोग अक्सर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डेफर कर देते हैं, या ये बिल जैसी चीज़ जो है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हमें वो $500 या $700 खर्च कर देने चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं, और हम वो $1000-1200 जो है वो गाड़ी की लीज दे देते हैं महीने वेकेशन पे चले जाते हैं 2 दिन के वेकेशन पे जाके $1000 या वेकेशन पे चले बराबर कर देते हैं। 2 दिन के वेकेशन पे और इस बारे में सोचते नहीं है कि यार जिंदगी बहुत, हाँ जी, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल भूला हुआ है कि हमने मरना भी है, खुदा न खास्ता। माइंड हमारा प्रोसेस नहीं करता, बड़ा चैलेंजिंग कन्वर्सेशन है ये, इसको विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना। हाँ, विजुअलाइज हो सकती है, हालांकि हम रोजमर्रा में देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल देख रहे होते हैं। अभी मौला अली का एक कॉल है यहाँ पे कि अक्सर अपनी मौत को अक्सर याद किया करो, तो और बल्कि वो एक शायद हदीस है या वो एक कॉल है कि अक्सर जो है वो कब्रिस्तान को विजिट किया करो ताकि तुम इबरत हासिल करो। तो वो इबरत क्या है कि यही है कि हम अपनी मौत को याद करें और हम देखें कि भाई आखिर हमारा आखिरी ठिकाना तो यही है, आना इधर ही है। लेकिन हम लोग जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने कामों में इस कदर बिजी होते हैं कि हम भूले पड़े होते हैं कि यार हमारा ये सारी चीजों का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, रियलाइज करना बहुत, और जब तक ये रियलाइजेशन इस बात पे नहीं ना हो उस वक्त तक हम मोटिवेटेड नहीं होते और हम बेसिकली उस पे कंसीडर नहीं करते कि मुझे तो कुछ नहीं होना, बिल्कुल। लाइफ जो है देयर इज नो गारंटी एंड वारंटी, थिंग्स ऑल ऑफ सडन हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और दुनिया बदल जाती है। दुनिया बिल्कुल, जो पीछे रह जाते हैं वो सेकंड्स में उनकी जो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए अब चले, बिल तो हमने बना ली, बिल तो उस सूरत में हो गई कि किस तरीके से जो कर्जे हैं या जो वो है वो उसको डेट्स हैं उसको कैसे पे करना है, किस तरीके से जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड करना है। लेकिन अब ये उसको सिक्योर कैसे किया जाए, मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि यार इंश्योरेंस नहीं, एक मतलब ये वो चीज़ें जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस के बारे में हम बात नहीं करना चाहते कि नहीं जी नहीं, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, वही उसी ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई हुई, अल्लाह ही संभालेगा। लेकिन जब एक ऑप्शन एक अवेलेबल है कि हम अगर इंश्योरेंस ले सकते हैं और हम उसको अपने सिक्योर कर सकते हैं चीज़ों को, तो
क्या आप एडवाइस करते हैं, करना चाहिए और उसमें क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? देखिए सर, मैं 2 पार्टीज़ के आगे, एक तो एक रिलीजियस पार्ट है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हर शख्स का अपना व्यू है, उसको मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ। सही। लेकिन एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और वेल्थ एडवाइज़र, कुछ जो मैं प्रैक्टिस रन करता हूँ, तो उसमें एक मैं बड़ा क्लियरली अपने क्लाइंट को एक बात कहता हूँ कि इफ द पीपल आर फाइनेंशियली रिलाइंग ऑन यू, देन यू नीड इंश्योरेंस। सही। If you already have surplus, enough cash, properties, asset, and things would be fine, and then you don't need it. Possibly. लेकिन वहाँ पे फिर दूसरे इश्यूज आ जाते हैं, स्टेट प्लानिंग की बात करते हैं, हम टैक्स मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपके पास अपने स्टेट टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। वो एक लंबा डिटेल टॉपिक है, उसको मैं टच नहीं करता अभी फिलहाल। लेकिन बेसिकली बेसिक डेफिनेशन ये है कि if the person of the family is financially relying on you, then you need some kind of a protection. और अगर वो वक्त के साथ साथ चीजें ओवर हो जाती हैं और आप उसके बाद समझते हैं कि अब नहीं, मेरी फैमिली मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ फंडेड है, इनफ हमारे पास इक्विटी है, एसेट्स हैं, और चाहिए नहीं होंगी, तो उसके बाद आप खत्म करते हैं। लेकिन एक यंग फैमिली, वन सिंगल मेंबर अर्निंग फैमिली विथ 2-3 किड्स, और जैसे स्टार्टअप फेजेस में हो, तो ऑब्लिगेशन आपके पास ह्यूज ऑब्लिगेशंस होती हैं उस वक्त। ना सिर्फ आपको अपनी मॉर्गेज की होती है, बल्कि के साथ में आपको एक सप्लीमेंट इनकम भी जरूरत होती है कि खुदा ना खास्ता इफ वो द पर्सन इज नॉट अराउंड, तो कुछ सालों के लिए, जब तक के या तो वाइफ अपनी स्किल्स को मजीद डेवलप करके या एनहांस करके या बैक टू दोबारा वर्कफोर्स में नहीं आ जाती उतने कुछ सालों के लिए, या बच्चे इतने बड़े नहीं हो जाते हैं कि कल को हेल्प आउट करने लगे शुरू हो जाए, उतने कुछ सालों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका घर पे ऑफ हो गया और हाउस ने कभी, वाइफ ने कभी सपोज करें जिंदगी भर काम ही नहीं किया, सपोज कर, जैसे हमारे मुल्कों में अक्सर देखने में आता है, अक्सर हमारी कम्युनिटीज में तो फिर घर पे ऑफ हो गया, आपका बिल स्टॉप नहीं हुआ, आपके बेशुमार बिल्स हैं आपके पास, एक मंथली आपको एक्सपेंस भी चाहिए, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक जो इंश्योरेंस है, इट हेल्प्स अ लॉट, जरूरी है, रिकमेंडेड है कि इसको कंसीडर करना चाहिए। तो ये जो जैसे मॉर्गेज लेते हैं जब, तो इसके लिए मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लेना वही काफी होता है, या कि अगर एक कोई लाइफ इंश्योरेंस ले ली जाए? मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है वो तो सिर्फ फिर मॉर्गेज का पार्ट ही कवर करेगी ना। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं उसको, मॉर्गेज इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दो अलग चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। नाम चेंज करती है बैंक, अपने जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है उसने नाम दे दिया मॉर्गेज इंश्योरेंस को। अच्छा, फर्क ये है, एंड ऑफ द डे है लाइफ इंश्योरेंस दोनों, और आपकी लाइफ के साथ अटैच्ड है। खुदा न खास्ता आपको मुझको कुछ हो जाता है और मेरे पास पीछे 5 लाख की इंश्योरेंस है, 5 लाख की आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मेरा मॉर्गेज का, तो जो बैंक की इंश्योरेंस है, बैंक क्या करेगा, बैंक वुड बी द बेनिफिशियरी, तो बैंक प्रोसीड रखेगा, घर आपका क्लियर टाइटल हो जाएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट आपके पास अपनी मॉर्गेज है, तो बेनिफिशियरी आपकी फैमिली है, उसकी मर्जी है कि घर वो क्लियर टाइटल करे, हाफ पे करे, बकिया उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जिस तरह से चाहे प्रोसीड यूज कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो मॉर्गेज इंश्योरेंस को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह ये है कि एक तो ये बेनिफिशियरी आप आपकी फैमिली नहीं होती, दूसरा आपको कोई कंट्रोल नहीं होता उस पॉलिसी के ऊपर, तीसरा जो प्रैक्टिकली देखने में आया वो ये कि हर 5 साल के बाद आप अपना मॉर्गेज रिन्यू करते हैं, देन यू स्टार्ट शॉपिंग अराउंड। टीडी के साथ आपकी है, बीएमओ के साथ है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ है, 5 साल के बाद आपने शॉप अराउंड करना शुरू किया, दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको चीपर रेट दे देता है, आप अपनी मॉर्गेज वहां स्विच कर देते हैं, आपने मॉर्गेज स्विच की, वो जो आपने इंश्योरेंस ली है वो खत्म हो चुकी है, अब आप और साथ साथ 5 साल अब आपकी एज भी बढ़ चुकी है, तो नई पॉलिसी जो होगी वो फिर पहले से महंगी होगी। तो पोर्टेबिलिटी जो है बेसिकली इन शॉर्ट इज द बिगेस्ट इशू। जो बैंक ऑफर प्रोटेक्शंस हैं या इंश्योरेंस होती हैं वो बेसिकली पोर्टेबल नहीं, आप एक पोर्टेबल ले लेते हैं, सेम प्लान है, बेनिफिशियरी आपकी पसंद का है, आपकी मर्जी का है, और उसमें कंट्रोल आपके पास है, पॉलिसी आप चाहे उससे अमाउंट से कम ले लें, चाहे उस अमाउंट से कहीं ज्यादा ले लें, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मॉर्गेज लोन ही नहीं बल्कि सप्लीमेंट इनकम भी जरूरत होती है फैमिली के लिए। घर पे मॉर्गेज 5 लाख की, बैंक आपको 5 लाख की देगा, इंडिपेंडेंट आप 7 लाख की ले लें, 8 लाख की ले लें, मुख्तलिफ किस्मों की इंश्योरेंस को आप मैच कर सकते हैं। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन बहुत हैं और आपके पास कस्टमाइजेशन बहुत है, और सबसे बड़ी बात पोर्टेबिलिटी बहुत है। आपका 20 साल 30 साल तक एक ही प्रीमियम रहेगा, लेकिन बैंक के साथ आप जहां जहां जैसे जैसे आप इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं आपका प्रीमियम जंप कर रहा है। सेकेंडली, आपने 5 साल का सपोज करें आपकी मॉर्गेज थी, 10 साल के बाद वो रहेगी 2 लाख की, तो बैंक आपको 5 लाख नहीं देगा,
वो सिर्फ आपको 2 लाख देके आपका हाउस क्लियर हो जाएगा। हाउस So क्लियर that's another big issue कि सही। आप तो 5 लाख की पैसे दिए आपने दे रहे थे और आपकी अंडरस्टैंडिंग 5 लाख की थी, लेकिन इवेंचुअली मिला सिर्फ उतना ही है जो कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कि था। आपका आउटस्टैंडिंग था, तो उस जी। सूरत में तो फिर वो आपका वो जो जितने पैसे आपने दिए वो सारे वेस्ट हो गए ना, वो तो नुकसान हो गया। तो ये इसलिए बेहतर है कि लाइफ इंश्योरेंस ही ले ली जाए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेट्स पुट इट दिस वे, बोथ आर इंश्योरेंस, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि सही। पोर्टेबल हो और जिसको कि आप जिस किस्म के लेना चाहें आप मतलब टर्म लें, चाहे होल लाइफ लें, चाहे परमानेंट लें, चाहे उसको मुख्तलिफ लेयरिंग में लें, तो सही हर तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं पॉलिसीज को। सही, बहुत अच्छा। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे आज के इस डिस्कशन सेशन से, और ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल में वेस्ट में स्पेशली रहते हुए हमें कंसिडर करना चाहिए। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में अभी पिछले दिनों एक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, एक बहुत सानेहा मैं तो उसे कहूँगा, एक बहुत ही यंग हमारे दोस्त कम्युनिटी मेंबर जो कि फादर्स डे पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गए और फिर वो घर वापस ना आ सके। एक ऐसी अनहोनी हुई, एक ऐसा सान्या हुआ कि वो अपने बच्चों के सामने अपनी फैमिली के साथ गए और फिर वो कुछ वहीं पे उनकी मौत वाक़या हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और अब उसी से हमें फिर ये मोटिवेशन मिली कि हम कुछ ऐसा एक डिस्कशन का प्रोग्राम करें कि जिसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ कि जो आप लोगों को, जो हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को एक इन्फॉर्मेशन दे के वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए ब वक़्त से पहले, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाने से पहले, कुछ ऐसा सानेहा अल्लाह ना करे, सब लोग अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए इस वक़्त। अपनी विल, अपनी वसीयत एक बनानी चाहिए, और फिर अगर इंश्योरेंस के ऊपर अगर कोई आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो वो ज़रूर लेनी चाहिए। साद भाई, प्रोग्राम के एंड पे अगर कोई आप एडवाइस करना चाहें हमारे नाज़रीन को, कुछ बताना चाहें विल के हवाले से, कोई चीज़ ऐसी, कोई पॉइंट आपके ज़हन में हो? बस मैं बिल पे एम्फसाइज़ करूँगा सर, जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और मेरा बस चले तो इतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह आप अपने घर से बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं निकल सकते, ना निकलने की सोच सकते हैं। आई विश कि ये भी किसी तरह से गवर्नमेंट इतना एम्फसाइज़ कर दे इसको कि आप इस चीज़ के बगैर घर से ना निकलें, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैंने फैमिलीज़ को रोते देखा है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह, पेनफुल है, और इसकी संजीदगी को, इसकी सीवियरिटी को और इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करें और एक्ट करें कि एट योर अर्लीस्ट कन्वीनिएंट टाइम, एज सून एज पॉसिबल, मेक श्योर करें कि इस चीज़ को स्ट्रक्चर करें, इस चीज़ को इन प्लेस करें, और अपनी विल और साथ में पावर अटॉर्नी, इन चीज़ों को बना के रखें, और टाइम टू टाइम इसको एज आई सेड कुछ सालों में चेक करते रहें, और बाकी अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को भी सबको कहें कि ये एक ज़रूरी पीस ऑफ पेपर है जो कि हर एक के पास होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। शुक्रिया। हैदर टीवी के हवाले से आप कुछ कहना चाहें तो? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह एफर्ट्स हैं, और बड़े एजुकेशनल और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, कम्युनिटी को ट्रूली इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे रहे हैं, और ये एक बड़ा अच्छा और सदका जारिया वाला काम है, क्योंकि सच्ची बात ये है कि बड़ी ज़रूरी है कि इस किस्म की लिटरेसी को हम प्रमोट करें, और जनरली, और इस तरह से दैट्स हाउ कम्युनिटी वर्क्स टुगेदर और ग्रो टुगेदर। हम सिर्फ ये नहीं है कि जनाब बड़े लाइट टॉपिक्स पे या गेट टुगेदर पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी कम्युनिटी का पल के एज ए कैनेडियन खासा चैलेंज है, और आपकी मैंने जो एपिसोड देखने शुरू किए हैं उसमें जो टॉपिक्स उठा रहे हैं, जिस तरह से आप एजुकेट कर रहे हैं, हाईली अप्रिशिएटेड, और कीप अप द ग्रेट वर्क। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, साद भाई की जो स्पेशलिटी है वो है वेल्थ एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम रखेंगे और पूछेंगे साद भाई से कि वो कहाँ-कहाँ, माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का माल मौजूद होता है, लेकिन वो प्रॉपर कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनको गाइड करेंगे कि कौन-कौन सी जगह हैं जहाँ पे वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को किस तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ज़रूर साद भाई हमें उसमें गाइड करेंगे और फिर से टाइम देंगे।
تو नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पे मौला अली का एक कोट, yesterday is gone and tomorrow is yet to come, while today is precious chance for you to make most of it. तो आज जो है ये आपके पास है, कल चला गया और कल ने अभी आना है, तो आज जो है ये आपके पास है. जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया विल के हवाले से, तो वो आज ही फैसला करें, आज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें, अपना और अपने घर वालों का और अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखिए. हैदर टीवी और हैदर के साथ प्रोग्राम को देखते रहें. आज अपने मेज़बान सैयद फरहान हैदर को इजाज़त दें. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.